हमारा भरोसा तुम्ही गोपीनाथ, हमारा भरोसा तुम्ही। हमारा भरोसा तुम्ही गोपीनाथ, हमारा भरोसा तुम्ही। तुम्हारा चरण लोइनु शरण, तुम्हारा चरण लोइनु शरण। तुम्हारा किंकर आमी गोपीनाथ, हमारा किंकर आमी। केमन शोधिबे मोरे गोपीनाथ, केमन शोधिबे मोरे। केमन शोधिबे मोरे गोपीनाथ, केमन शोधिबे मोरे। ना जानी भक्त कर्मे जड़मते, न जानी भक्ति कर्मे जड़मती। थोरे की संसार भोरे गोपीनाथ, थोड़े की संसार भोरे। सकली तोमार माया गोपीनाथ, सकली तोमार माया। नाही मम मोल ज्ञान सुने मोल, स्वाधीन नहीं काया गोपीनाथ, स्वाधीन नहीं काया। नियत चरण स्थान गोपीनाथ, नियत चरण स्थान। मांगे कामोर कांदिया कांदिया, मांगे पामोर कांदिया कांदिया। करह करुणा दान गोपीनाथ, करह करुणा दान। करह
कली पारो दुर्जन तारीते तुम्हारो सखी दुर्जन तारीते तुम्हारो सखी के আছে পাপির হার গোপীনা আছে পাপিরার তুমি কৃপা পারো বারো গোপীনা তুমি কৃপা পারবার তুমি কৃপা পারবার গোপীনা জীবের কারণে হাসিয়া প্রপঞ্চে জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইলে সুবিস্তার গোপীনা লীলা কইলে সুবিস্তার আমি কি দোষে দোষী গোপীনা আমি কি দোষে দোষী আমি কি দোষে असुर सकला पाइलो चरण असुर सकल पाइलो चरण विनोद থাকিল গোষ্ঠী গোপীনা विनोद থাকিল গোষ্ঠী हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
Vivasadigo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So today is a very auspicious day of Mohini Ekadasi. So on one of the Ekadasi days, when we used to stay near that Pitambar Chak, so once I was in the evening chanting on the terrace. Then I saw a lot of small children playing, and on the ground what they were doing, they were collecting a lot of grasses. A lot of grass was there, and they put a fire out of it as a play. Grass etc. were there, hay etc. And they somehow they put fire, small fire, and they were quite excited about it. And then they were putting more grass. All of a sudden, somehow the fire became little bit big. It was small fire initially, little bit they collected grasses etc. and they burned. But eventually they are putting more, and 10-15 children were there, they are putting more and more and more. And eventually they put a lot of grass and it became blazing fire. And then some of the children got afraid. Huge fire. Then one of the children became very angry at the fire. And he said, so what he did, he collected a lot of grass and made a ball out of it. Heavy ball. Collecting all the grasses. And he said, Nitai Gaur Premanand. Not Nitai Gaur Premanand, something like that. So he got hold of that ball and hit it with the desire to, what was his desire? His desire was, by putting that ball of grass, he'll extinguish the fire. But then, when he put it with a lot of energy, ki bas, swaha, it will be off. But to his surprise, it became even more bigger. So I was just laughing that these children are like, they don't have knowledge. So this is the situation of modern civilization. That the whole metal world is blazing. The blazing fire, samsar, dava, nan lidaloka, tranaya, karunya, ghana, ghana. And blazing fire, metal existence. What is that fire of metal existence? The desires, the lust, desire to enjoy, so deep rooted, that it's just like blazing. And what is the solution people are trying? Yes, putting with full intensity, with great force. When lust comes, they said, okay, chalo, satisfy karo. समझ रहे? Live life king size से तुम. So मेरे को डिजायर आ रहा है, वासना आ रहा है, एकदम ऐसा दो वासनाओं को एकदम वासना संतुष्ट हो जाए. So it's like putting on the blazing fire the ball of metal desire. So it will extinguish. What is going to do? Extinguish होगा? क्या होने वाला है? It will become more blazing. And then it becomes so blazing that the child started getting heat. So the same way,
Whole metal civilization. People are burning with metal desire. And what is the propaganda of the society? That if you have sex desire, fulfill it to such an extent that it will be satisfied. If you desire to eat, eat as much as you can. Whatever you have desire, do it. But unfortunately, the blind fulfillment of the desires leads to more blazing, frustration and chaos. Isn't it? And they enjoy. While the fire is blazing, they feel, wow, maja aa raha. They feel very nice. But then, what is that enjoyment? Just keep on blazing and blazing and blazing and blazing. So by Prabhupada's grace, we are so fortunate that we have understood by the Guru's grace, samsara dava lalalidaloka tanaya karunyo ghana ghana pa. Esham Sharada Valalidalo Ganaya Karunya Gana Gana प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो चरणारविन्द. So Prabhupada is so mercifully brought in our life, which was completely misdirected, the direction, the proper direction. Most of us, we were completely misdirected. Like before coming to Krishna consciousness, how many of have this understanding that sense gratification is miserable? It was miserable, but somehow we could not see it. That root cause of our desire, misery is our own desire to enjoy. But somehow Srila Prabhupada came to our life, and he has, with the wonderful rain cloud, monsoon cloud, extinguished that fire of material desire. Cannot say extinguished, but we are in the process of extinguishing. So that's why this sloka is in the present sense. That we are still burning and Guru is still bringing us the monsoon cloud, rain of the Krishna consciousness. This is the real mercy, to enlighten people with this wisdom that you are not this material body.
Material desires cannot satisfy us. Krishna alone can satisfy. But somehow nobody has this understanding. Neither our parents, nobody. I never met any single person in my life who could give clear picture. Although it was there in Bhagavad Gita, although we had a Gita in our home, but without Prabhupada's mercy, so, and Prabhupada not only gave us the knowledge, not only awareness about our disease, but along with that he has given us the process of cure. And the process itself is so sweet. The process of cure given by Sri Chaitanya Mahaprabhu is very sweet. The other process of cure, they are not actually process of cure. They can at best, Karma Yoga, Jnana Yoga, all this process, at max, they cannot cure you. They can at best mitigate your disease, but cannot completely cure it. So all the process, other processes are so tiresome and so difficult and so dry. Now imagine the process given by the impersonalist is what? Neti, neti, neti. What does it mean? So what is their sadhana? Their sadhana is say no to everything. Good music, cannot enjoy. Good food, cannot enjoy. निस्वाद, स्वाद करेगा तो फिर बॉडी लेवल बढ़ जाएगा, बॉडीली कॉन्शियस. निस्वाद, निसंग, no to everything. So in their camp sometime what they do, 3 days camp, only you will get 1 carrot in a day. Whole day meditate, that you are not enjoy. In the end of the day get some 1 carrot. It's purifying, but it's very dry. When you say no to sense object for some time, then those impulses, vegas, can sometime, if you don't feed the wrong dog, its intensity will sometime become slow. But it's not a cure. Desire is still there. इंटेंसिटी कम होने का चांस है. आप बहुत दिनों तक नहीं करेंगे उसको, तो इंटेंसिटी ऑफ दोज डिजायर्स कैन रिड्यूस, बट दे आर स्टिल देयर. इट्स नॉट दैट दे आर रिमूव. ज्ञान मार्ग कैनॉट रिमूव द डिजायर्स, cannot remove your lust. It can only, now when you agitate your lust, it becomes more and more. Suppose somebody has sex with a girl, then that will become more and more and more and more and blazing, like he'll become mad. But somebody says, no, I will not do this. Yes, good. Say no. Then slowly, slowly that urges will become less. But it didn't go away. It's there. It's there. जाती नहीं, वो रहती है. विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तक ऑलमोस्ट वासना उनका कम हो गया था, लेकिन एंड एट द लीस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट, प्रोवोकिंग सिचुएशन, वन कैन अगेन बी ट्रैप्ड. So the process of Gyan Marg etc. just hiding the problem but not removing the problem. But the process of bhakti is so sweet, especially what given by Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu Kirtana Nitya, Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Maditra Madhya
मनशोरसेन रोमांचकं पारुतरंगभाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदो। The soul is looking for unlimited love of Krishna, and it has forgotten Krishna's service. It has come to this world, and those same loving desires are reflecting in the form of lust for material things. So now the lust entangles us, binds us, kicks us, tricks us, and we are so horribly disturbed by this lusty desire, and there is no solution to it. The path of karma also not a solution. Gyan Marg is not a solution. So Sri Chaitanya Mahaprabhu kindly has come in Kali Yuga and given us a process which is very sweet. That's why it said Guru gives Mahaprabhu Kirtan. Kirtan has always been existing, but this Kirtan given by Sri Chaitanya Mahaprabhu is very special. Nitya Geet with instruments, Vaditra. Vaditra means musical instrument. What does it do? Manaso rasena, मन को एकदम रस दे देता है. We all are looking for rasa. Raso vahi saha. And the Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, seeing the people of Kali Yuga so much entangled in sense gratification, has come to give them the higher taste of the Hari Kirtan. And this Hari Kirtan is so nice, so tasty. So if somebody absorb himself, how can one absorb himself saying no to sense gratification? Just ना बोलना है, ना बोलना है, ना बोलना है, उसी पे ध्यान कर. क्या ध्यान लगाएगा? There is no positive taste. Only you have to meditate कि वो नेगेटिव जो किया था मैंने पहले सेंस ग्रेटिफिकेशन किया था उसको नहीं करना. टेस्ट क्या है? ऐसा नहीं कि उसको फास्टिंग बहुत अच्छा लग रहा है. She is like frustrated and you want to just give up because of that pain of Gita. It said 2.59 that how even though one may say no to the sense object, the taste for sense object remains. Vishya vinivartante niraharasya dehi. So 2.58 says that how a self-realized person can say no to sense object. समझ रहे? जहाँ जहाँ सेंस ऑब्जेक्ट्स सेंसर्स की इच्छा जाती है वो वापस ले आता. नहीं, लड़की को नहीं देखना है, अच्छा खाना नहीं खाना है, अच्छा पहनना नहीं है, अच्छा रूम में नहीं रहना है, गर्मी लग रहा पंखा मत चालू करो. समझ रहे हैं? तो यदा संहरते चायम कुर्मो आंगाणी. बढ़िया फीस्ट बनाए मत खाओ, नहीं तो सेंसे एजिटेट हो जाएगा. समझे? अच्छा रूप है मत देखो, नहीं तो सेंसे. अच्छा स्मेल है मत देखो, मत सूंघो, नहीं तो. बिकॉज इट्स कॉल्ड ए स्टिंटिलेशन. एक बार थोड़ा सा आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब आप बहुत देर से रोक के रखें, एक्सपोज हो गया तो फिर से वो भड़क सकता है. कितना दिनों तक आप उसको शांत रखेंगे फिर भड़केगा नहीं? 1 साल, 2 साल, कितना साल? आप कितना भी दिन तक उसको शांत रखो, अपॉर्चुनिटी मिलने में भड़क जाएगा. समझ रहे?
बटर एंड द फायर प्रिंसिपल। बटर को कितना साल फ्रीजर में रखोगे कि फिर बाद में फायर में डालोगे तो नहीं पिघलेगा? 1 साल? कितना साल? हाँ मणिपुर, कितना साल बटर को रखेंगे फ्रिज में कि एकदम ऐसा सॉलिड हो गया, अब ये पिघलने वाला नहीं? 6 मंथ बटर को अगर फ्रिज में रख देंगे तो फिर पिघलेगा नहीं। फिर उसके बाद हलवा बनाएंगे तो पिघलेगा नहीं। हाँ, तो वही कितना मंथ रखेंगे पिघलेगा नहीं फ्रिज के अंदर। इतना मंथ रख देंगे, उसके बाद वो जब गैस पे चढ़ाएंगे नहीं पिघले। ऐसा कितना मंथ? हाँ, कितना समय? 1 साल? 2 साल? हाँ, पिघल तो जाएगा। वेरी गुड, गुड आंसर। तो आप कितना भी साल रखो वो तो पिघल ही। सो दैट्स वाई द प्रोसेस ऑफ ज्ञान इज यूजलेस। समझ रहे हैं? उसको आचार्य बोलते हैं, इट्स लाइक यू नो, इतना मेहनत करना पड़ता। सोच लो कितना साल तक वो बेचारा छोड़ छाड़ के एकदम बैठा रहेगा, कितना तपस्या करेगा, बट रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ नहीं। रिजल्ट ऑफ इतना साल तपस्या करने का क्या है? 0। आचार्य बताते किसके समान है? जैसे आदमी कोई इतना बड़ा धान का वो क्या ले लिया, ढेरा ले लिया। धान समझते? धान कुछ दिन पहले लोग का घर में धान आया था तो कूट रहे थे घरे में, समझ रहे हैं? तो धान राइस के क्या बोलते, छिलका के अंदर राइस रहता है, तो छिलका निकालेंगे राइस निकल जाए, समझ रहे हैं? तो माता जी पहला अपना घर का निकाल के हम लोग को चावल दी थी। तो मान लीजिए चावल निकाल लिया, फिर भूसा बच गया है। क्या बच गया? 1000 किलो भूसा, समझ रहे? तो इतना बड़ा गोवर्धन, उसको कितना पीटेंगे कि उसमें चावल निकलेगा? कितना देर पीटेंगे चावल निकल जाएगा उसमें? हाँ हाँ, कुछ भी कर लेंगे उससे चावल नहीं निकल सकता। तो ज्ञानियों का मार्ग कैसा है कि जो भूसा है, जो धान से ऑलरेडी चावल निकल चुका, उस भूसा में वो लोग क्या मारते रहते, निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकला। वैसे द प्रोसेस ऑफ द ज्ञानीज एट मैक्स कैन गिव यू freedom from misery, but it cannot give you any access to the higher taste of Krishna. But it's good for those who are suffering because of agitation of their senses. For them, like कोई आदमी सेक्स किया, गड़बड़ हुआ, प्रॉब्लम सहा, तो ठीक है, थोड़ा देर ना बोलेगा तो। कोई आदमी ज़्यादा खा लिया, पेट दुख रहा है, तो आप फास्टिंग करेगा ठीक है उसका। रोज़ ज़्यादा खाता है, पेट दुखता है, समझ रहे हैं? तो 1-2 दिन फास्टिंग करेगा तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। जिसका मान लीजिए हमेशा चाउमीन पास्ता इधर उधर खाते रहता, पेट जाम रहता है, पाइल्स हो गया है। क्या हो गया उसको? पाइल्स हो गया है। निकलता है तो एकदम लगता है खूने निकलता है बेचारे, बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स। व्हेन ही ईट, उसको क्या निकलता है? टॉयलेट से खून निकलता है। कितना कष्ट होता होगा, ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएगा। तो वो आदमी थोड़ा दिन अगर पिज़्ज़ा पास्ता नहीं खाएगा, 1 दिन फास्टिंग करेगा, तो उसका टॉयलेट नहीं होगा तो उसको लगेगा वाह जन्नत हो गया, क्या हो गया जीवन में। तो सिमिलरली the process of the gyanis of saying no is like temporary relief, which also Krishna says, yada samharate chayam kurmo angani इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने सेंसेस को ज़्यादा एजिटेट नहीं करते। इसलिए बहुत सारे मंदिरों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर टॉर्टोइस का फोटो रहता है गेट पे, समझ रहे हैं? तो टॉर्टोइस को क्या सिखाया जा रहा है कि भाई जितना सेंसेस अंदर रख के रखो, क्योंकि बाहर जैसे निकालोगे झंझट,
लेकिन मंदिर के अंदर जाएंगे जहाँ टॉर्टोइज जो रहता है पूरा उसका सेंसेस बाहर निकला हुआ। तो बोल रहे हैं कि बाहर दुनिया में अपना सेंसेस को क्या करके रखना है, बांध के रखना है। डोंट सी द फॉर्म आउटसाइड, डोंट सी बंद। महात्मा गांधी ने क्या बोला, 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, विच इज गुड बट इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। बुरा कितना ही नहीं देखो, कभी ना कभी बुरा देख ही लेगा। कितना भी क्लास दे दो, सेंस गेट मत करो, फिर भी कर ही लेगा। इसलिए नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, या ठीक है इसका परपोर्ट पढ़ते हैं। वेरी नाइस परपोर्ट पढ़िए इसका। The test of a yogi, devotee or self-realized soul, is that is able to control the senses according to his plan. Most people, however, are servant of the senses and are thus directed by dictation of the senses. तो सब लोग इंद्रियां उनको टानती हैं और दास रहते हैं। So if you gratify your senses, you will become servant to them. Initially you may say, I am master. But after some time you will become servant. Initially you may say, I will drink चाय, मेरे को चाय बहुत अच्छा लगता है पर्टिकुलर दुकान का। फिर थोड़े दिन बाद फिर आदत लग जाएगा, फिर वो आपका चाय सेवा नहीं करेगा, आप चाय का सेवा करेंगे। समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी से एक आदमी पूछा, अरे आप लोग बीड़ी भी नहीं फूकते हैं, आप लोग का जीवन में कितना रेस्ट्रिक्शन है? प्रभुपाद बोलते हैं, हम लोग का जीवन में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग फ्रीडम है, हम लोग बीड़ी फूकने का इच्छा नहीं फूकते हैं। लेकिन तुम बीड़ी का दास है। तुम क्या है? तुमको जैसे ही ऑर्डर आएगा बीड़ी फूक, तुमको फूकना पड़ेगा, तुम ना थोड़ी ना बोल सकते। इसलिए तुम क्या है? बीड़ी का दास। कुछ लोग बीवी का दास होते, कुछ लोग बीड़ी का दास होते, एक ही बात। समझ रहे? बीड़ी का जैसे अर्ज आएगा, ए बीड़ी, ए चल फूक चल, टाइम हो गया, बहुत मेरे को अनईजी लग रहा है, चल फूक। तुरंत ऑफिस से निकलेगा, जो भी हो। तो एक आदमी से मिला तो रजनीगंधा के दास थे। समझ रहे हैं? 70 रुपये का रजनीगंधा, 8 रुपये का तुलसी, मिला के 10 बार उनको क्या बोलते हैं, रोज EMI देना पड़ता है अपनी, कोई लोन लिया है। समझ रहे हैं? भौतिक इच्छा का, तो रोज़ उनको 250 रुपया EMI चुकाना पड़ता है और 2 घंटा समय जाता है उनका, रजनीगंधा और साथ में तुलसी जाती। तो मैं समझाया तो मान गए, हाँ प्रभु जी ठीक बोल रहे हैं आप, छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? और बोले हाँ प्रभु जी एक माला करवाया मैंने उससे, सब कुछ हो गया। फिर 2-2:30 बजे बात हुआ। फिर मैं वहाँ से 3 बजे से आया था, तो अपनी गाड़ी से मेरे को छोड़ना प्रयास कर रहे थे, तो आधे घंटे के अंदर उनसे रहा नहीं गया। फिर मेरे को जब लेके जाया तो मैं देखा, अरे ये तो मुंह से बांस मार रहा है रजनीगंधा का। समझ रहे? मतलब खा लिए, मतलब क्या प्रभु जी, तो रहा नहीं जा रहा, मतलब समझ रहे? आधा घंटा उसके बिना रहा, लग रहा है क्या बोलते हैं, प्राण वायु बाहर। सांस बिना आदमी नहीं रह सकता है। वैसे ही आदमी शुरू में तो सौखिया खाता है, बाद में उसको लगता है कि इसके बिना आधा 1 घंटा, मतलब अभी मेरे को एग्री किया प्रभु जी नहीं खाएंगे, अभी जस्ट बोला है नहीं खाएंगे प्रभु जी, ठीक बोल रहे हैं आप। आधा घंटा भी उसको टॉलरेट, समझ रहे? तो बुरी आदत ऐसे ही है। हम लोग सोचते हैं कि कोई लड़का लड़की से डील करता है, वो सोचता है नहीं हम कंट्रोल वे में डील करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में जब घुसता है तो फिर हेल्पलेस हो जाता है। समझ रहे हैं? फिर उसका एग्ज़ाम कोई उसको, मतलब फ़ोन आ गया, मतलब सर्वधर्मान परित्यज, पर रात बिता देगा, फिर रोएगा आके, अरे प्रभु जी ऐसा कैसे। तो सुनो, द मटेरियल डिजायर टॉर्मेंट अ पर्सन एंड टॉर्चर अ पर्सन, और वो हेल्पलेस हो जाता है। सो जो
तो पता चल जाएगा आपको। कोई आदमी भक्त अगर रियली में योगी है तो वो अपने सेंस को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन कंट्रोल करना इम्पॉसिबल। दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ द योगी सिचुएट। तो जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो अपना सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। सेंसेस आर कंपेयर टू वेनमस सर्पेंट्स। किसके साथ कंपेयर किया गया इसको? वेनमस सर्पेंट्स। दे वांट टू एक्ट वेरी लूजली एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो इसीलिए फ्रीडम नहीं देना चाहिए। फ्रीडम दोगे मतलब झंझट होने का संभावना है। फ्रीडम देना मतलब आदमी बोलता है रेगुलेटेड वे में करेंगे। क्या करेंगे हम? माइंड क्या बोलता है उसको? बस इतना सा हलवा खाएंगे, बस टेस्ट करेंगे, समझ रहे? एक ठो रजनीगंधा खाएंगे बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दारू पियेंगे रेगुलेटेड वे में, समझ रहे? और हो सकता है कुछ दिन रेगुलेटेड में चल भी जाए, लेकिन उसके बाद क्या होता है? एकदम तहस नहस। The senses are like venomous serpent. आपके रूम में अगर एक कोबरा है, समझ रहे हैं, तो वो अपना बगल में बैठा है, समझ रहे हैं, और अपना पीसफुली सो सकते कि नहीं? आप अपना मॉस्किटो ले रहा है, सो जाओ, समझ रहे हैं? हरे कृष्णा, शांति से बैठे रहना, नींद आएगा क्या? तो उस पर भरोसा कर सकते हैं क्या? कब बाकी काट देगा वो भरोसा? सिमिलर वे इन आवर लाइफ ऑल्सो, इफ वी अलाउ दिस venomous serpent, we should be very careful with it. They want to act very loosely and without restriction. The yogi or the devotee must be very strong to control the serpent, like a snake charmer. तो स्नेक चार्मर क्या करता है? पौ 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 मौ 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 क्या कैसे बजाता है ना वो? हाँ, सपेड़ा बोलते हैं उसको। ऐसे करके बजाता है, तो बजाते रहना पड़ेगा डिवोटी, समझ रहे हैं? सो ही नेवर अलाउज देम टू एक्ट इंडिपेंडेंटली. There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are don'ts, and some of them are do's. Unless one is able to follow the do's and don'ts, restricted ones of sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. तो आदमी को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए कृष्ण में. अगर आप जो विधि निषेध सही से पालन नहीं करेंगे तो फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा. So one should not play around with Maya. One should not play around with Maya. प्ले करेंगे तो फिर आपका गेम ओवर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? तो इसलिए आदमी को बहुत केयरफुल रहना चाहिए. थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना, समझ रहे? सो जो भक्ति के नियम जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम में वन शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट. कोई आदमी बोले आया ठीक है माला नहीं भी के चलते, देन यू विल फाइंड ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट इन योर लाइफ. अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट. एकाएक आपके सेंसेस वाइल्ड हो जाएंगे, कुछ गड़बड़ कर बैठेंगे. तो एक स्टूडेंट बोल रहा था कि कुछ दिक्कत क्या, सब कुछ ट्राई कर लेते, सब कुछ. प्रॉब्लम है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के बाद उसके बहुत डीप संस्कार रहते हैं. क्या रहते हैं उसके? बहुत डीप संस्कार, स्कार. एक आदमी फाइट करता है, उसको चोट लगा तो जीवन भर एक तो धब्बा रह जाता. वैसे आप कुछ अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं तो बहुत बार उसके स्कार्स बहुत डीप होते हैं. इतने डीप होते हैं कि फिर जाएंगे नहीं. तो किसी ने इलिसिट सेक्स कर लिया तो उसको हॉन्ट करेगा. क्या करेगा? हॉन्ट.
और फिर से उसको प्रेरित करेगा गलत करने। या कोई आदमी दारू पी लिया, ठीक है, सो क्या नहीं, धीरे धीरे फिर से उसको क्या करेगा, टेम्प्ट करेगा। इसीलिए one should follow the do's and don'ts, restricting oneself from sense enjoyment, otherwise it will be very difficult to be fixed in Krishna consciousness. The best example is a tortoise. The tortoise can at any moment wind up its senses. देखिए tortoise को, senses अंदर कर लेगा, ऊपर से सेल उसका बहुत सॉलिड होता है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। Similarly, senses of Krishna conscious person are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. Arjuna is being taught here to use his senses for service of the Lord instead of his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of a tortoise who keep the senses within. तो हमारी इंद्रियों को हमेशा engagement रखना चाहिए. If you are not busy in Krishna consciousness, you will be forced to serve Maya. इसलिए आदमी को काफ़ी सर्विस लेके रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सर्विस नहीं रहेगा, आप देखेंगे कभी कभी मोबाइल में कुछ गड़बड़ देख लेंगे, कुछ भी घटना घट जाएगा। तो ऐसा फ्री टाइम नहीं होना चाहिए डिवोटीज की लाइफ में ज़्यादा। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, फिर स्टडी, जैसे मतलब प्रीचिंग, मतलब शुड बी पैक्ड। फ्री टाइम मीन्स डेंजर, बहुत डेंजर होने की संभावना। So we should be very careful. And the beginning stage is very good that we ourselves may be very weak. So if sense provocations come, it will be impossible to say no. So that's why we fence ourselves in the association of devotees. We fence ourselves from material desires through the association of devotees. बहुत जरूरी है कि हम भक्तों के संग के द्वारा अपने आप को क्या करें, बचा के रखें। समझ रहे? तो it's very important that we associate with devotees, be in association. And in being in association also, you should be careful. To not say yes to Maya. Because once you say yes to Maya, you become very weak for long term. You see the case of Ajamil. He just once said yes to Maya. एक बार उसने सब थोड़ा सा यस बोल दिया, सीन को देखा, कोई वैश्या एक लड़का के साथ संग करे, वहाँ जा भी सकता, थोड़ा सा देख लिया, बस थोड़ा सा उसने यस बोल दिया, देन दैट उसने कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं कि वो लड़की को इम्प्रेस किया, कुछ किया, जस्ट ही सॉ दैट सीन। उसको तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा देख लिया, तो देख लिया, फिर आ गया घर। लेकिन घर आया फिर भी वो डिज़ायर हॉन्ट करने लगा, वो संस्कार बैठ गया, वो चित्र बार बार उसके चेहरे में आने लगा कि लड़का लड़की इम्ब्रेस कर रहे हैं, हाँ हाँ हंस रहे हैं। Although he knew the philosophy, he was a Brahman, he knew the philosophy that woman's body is just temporary, miserable, all this thing. But the sanskars are very deep. ऐसा नहीं तो उसको ज्ञान नहीं था, ज्ञान था उसको, लेकिन ज्ञान क्या हो गया, आवृतम ज्ञानम एतद्धज्ञ। ज्ञान था लेकिन ज्ञान क्या हो गया, और ढक गया। तो फिर उसको वो प्रोस्टिट्यूट को अपने घर में ले आया। कैन यू इमेजिन? Although he knew that body will not give happiness, but then
those samskaras were so deep. इसलिए प्रीचिंग करते समय बहुत केयरफुल रहना चाहिए. बहुत क्या रहना चाहिए? So we should very scrutinizingly study Bhagavad Gita so that our intelligence is very strong, so that we can understand what is Maya, what is Krishna consciousness. But after that also, so we study the scriptures nicely, we associate with sadhus, and by sadhu sang we understand by intelligence that sense getting miserable, and then we do bhajan. We do what? Bhajan. So that our intelligence, which is convinced now, intelligence is convinced, mind is not convinced. Mind is having different, mind is not a devotee. Which is easier to make devotee, mind or intelligence? Intelligence little easier to make devotee. थोड़ा उसको समझाना थोड़ा easy है. माइंड के संस्कार पहले के हैं, वो आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मतलब डीपली बैठा हुआ है. तो इंटेलिजेंस से समझ में आ जाएगा सेक्स करके फायदा नहीं, लेकिन माइंड को लगेगा नहीं मजा आएगा. इंटेलिजेंस से पता चल जाएगा कि ओवर ईटिंग करना अच्छा नहीं, लेकिन माइंड को लगता है अरे खाओ चिप के कोई दिक्कत नहीं. समझ रहे हैं? किसी का बहुत प्यूरिफाइड माइंड हो सकता है, अलग बात है. मतलब आप लोग कुछ लोग प्यूरिफाइड माइंड, अगर किसी का प्यूरिफाइड है तो उसका माइंड ही बोलता है कि बेकार. समझ रहे हैं? अनर्थ निवृत्ति के बाद जो मन होता है ना, वो मन ही बोलता है कि नहीं चाहिए. अनर्थ निवृत्ति पहले वाला जो मन है ना, वो बोलता है कि चाहिए ही चाहिए. तो इंटेलिजेंस साधु संघ से मिलेगा, उनके द्वारा बोरो करते हैं हम इंटेलिजेंस भगवत गीता पढ़ने से. और आपका बहुत अच्छा साधना करेंगे, हरे कृष्णा जब जितना अच्छा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान को पुकारेंगे, मेरे मन को पवित्र कर दीजिए, तो धीरे धीरे मन में कृष्ण बैठने लगते हैं, मन शुद्ध होने लगता है, अनर्थ निवृत्ति होने लगती, मन को भौतिक चीज़ें खराब लगने लगती है. अब दारू पीना हम लोगों को क्या लगता है? खराब लगता है. पोर्नोग्राफी देखना खराब लगता है, मतलब घिन आता है. धीरे धीरे एक दिन में तो नहीं होगा. आदित्य उठ जाओ. तो धीरे धीरे आपका माइंड क्या होगा? प्यूरिफाइड हो जाएगा. समझ रहे हैं कि नहीं? और and when you chant Hare Krishna, you will feel some taste. You will feel sometime freedom from those material urges, and you will sometime feel the taste of Krishna consciousness. And then we want to give Krishna consciousness to others also. Ki we are experiencing relief from material urges. What a relief! जैसे आदमी कोई कंस्टिपेशन सफ़र कर रहा है, टॉयलेट निकलता ही नहीं है बेचारे का, मतलब कितना भी प्रेशर, कितना भी पानी पिए, फिर भी लगता है ये जाम है, मतलब किसी को कंस्टिपेशन हुआ आज तक? बहुत लोग. कितने लोगों को हाथ उठाए? बहुत लोगों को. तो आप पानी पियो फिर भी नहीं निकलता है. समझ रहे हैं? बड़ा हरिबोल स्थिति हो जाती. और फाइनली कुछ 1-2 दिन बाद आपका हमारे पानी पिया, कुछ किए और साफ हो गया, कैसा लगता है? हाँ, अद्भुत. तो वैसे दिस मेटल डिजायर्स आर लाइक टॉर्मेंटिंग, परेशान करके रखता है. और फिर कृष्णा कौन से करे, कभी थोड़ा थोड़ा रिलीफ फील होता है. और ये एक डिजायर नहीं, हजारों डिजायर है. मान लो क्रिकेट देखने का इच्छा है, पर्टिकुलर टाइप का ड्रेस पहनने का इच्छा है, हजार लाखों फ्लेवर्स. कोई एक फ्लेवर में रिलीज मिल जाता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो कितना सेटिस्फेक्शन लगता है.
तो अ पर्सन, दिस इज कॉल्ड एज प्रत्यक्ष आवगमम धर्मम. इसको क्या बोलते हैं? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमितम. गीता के 90वें अध्याय का 2 नंबर श्लोक है. राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तम. यह जो ज्ञान है राजविद्या, टॉप मोस्ट, राजगुह्यम, मोस्ट सीक्रेट. जो दुनिया में आपको केवल यह ज्ञान सिखाया जा रहा है कैसे मेटल डिजायर पूरा करना है. मेटल डिजायर को हटाने का तो कहीं सिखाया नहीं जा रहा है. समझ रहे हैं? ऑल द एजुकेशन सिस्टम आर गिविंग यू नॉलेज हाउ टू फुलफिल योर मेटल डिजायर, एंड इट गिव्स यू सम सेटिस्फैक्शन, नो डाउट. भूख लगा है, थोड़ा सा फिश खाओ, अच्छा लगता है, नो डाउट. बट दिस राज विद्या विच टेल्स यू भाई तुम मैटर हो ही नहीं, मेटेरियल डिजायर को फुलफिल करना ही बेकार. समझ रहे हैं? अमॉन्ग वेदास ऑल्सो 99% डील्स विद कर्म कांड. दे फुलफिल योर मेटेरियल डिजायर. आपको इल्यूजन में हैप्पी बना रहे. समझ रहे हैं? योर बॉडी एंड सेटिस्फाई बॉडी अर्जेस, बट एक्चुअली इट्स चीटिंग. कैटव धर्म, चीटिंग धर्म. सो द गीता इज राज विद्या. इट टॉक्स, अरे तुम हो ही नहीं शरीर, मेटल चीजें हैप्पीनेस देंगी नहीं, इसलिए नो मेटल डिजायर ही हटाओ. इट्स वेरी सीक्रेट. गीता में 1 लाख श्लोक है, वेदों में कहीं पर नहीं बताया गया, बहुत रेयरली बताया गया. सब जगह ये बताया गया कैसे बच्चा चाहिए ये पूजा करो, ये चाहिए ये पूजा करो. सेक्स कैसे सेटिस्फेक्शन देगा, कौन से प्रकार सेक्स करना चाहिए, कौन से ऐसे करना चाहिए, कौन सा. इट्स लाइक यू नो, ठीक है, इट्स गुड दैट इट्स टीचिंग यू हाउ टू मेक योर बॉडी हैप्पी, बट इट्स नॉट कंप्लीट. सो द गीता's message pavitram, it will purify your material desire. Uttamam. Tama means, Uttama means, Uttam means, Uttam means best. Uttam means, no. Uttam means Uttama. Tam means ignorant. Uttam means beyond ignorant. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक, मैं भी जब नया था सोचता उत्तम मतलब बेस्ट. यहाँ पर उत्तम का मतलब वो नहीं. उत्तम मीन्स दैट विच ट्रांसेंड्स इग्नोरेंस, जो आपको इग्नोरेंस से ऊपर ले जाएगा. सो दिस नॉलेज विल टेक यू बियॉन्ड इग्नोर. एंड नॉट ओनली इट्स नॉलेज, इट्स अ प्रोसेस. सततम कीर्तयन्तम. तो क्या होगा उसके द्वारा? प्रत्यक्ष आवगमम धर्म. प्रत्यक्ष, यू विल एबल टू सी बाय चैंटिंग हरे कृष्णा दैट oh, I am not this body. Yes, there is spiritual happiness. Yes, there is relief from that material desire. जो मैं 20 साल से ट्राई किया गुस्सा से रिलीव हो जाऊँ, कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अरे ये तो रिलीफ दे देता है. सचमुच में मतलब मेरे को अर्ज था, कोई मेरा ईगो कुछ बोलता है, मैं लेकिन अब मन करता है छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसका बोलने थोड़ा ना हो गया. प्रत्यक्ष यू कैन फील इट. अरे जो आपका अर्ज था प्रूव करने का, ये करने का, वो करने का, यू आर रिलीव फ्रॉम इट, कि ठीक है छोड़ दो. समझ रहे हैं? प्रत्यक्ष आवगम, यू कैन पर्सनली एंड यू कैन experience the bliss of Krishna. Susukum. What's about happiness? Avyam, unlimited happiness. So, a person, when he practices Krishna consciousness, will experience actually who is qualified to preach. At least you should have this much experience. थोड़ा प्रत्यक्ष होना चाहिए उसको कुछ. इसलिए ऐसा नहीं कि एक माला कर रहा है ज़्यादा डायरेक्ट प्रीचिंग करे. ये कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल मर्सी है. एनी हाउ चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल मर्सी में आप कुछ भी कर सकते. बट स्टिल इट्स गुड हु कैन डू गुड प्रीचिंग, हु एक्सपीरियंस सम थिंग्स इन हिज लाइफ. इसलिए अच्छा साधना करना चाहिए ताकि हमको कुछ एक्सपीरियंस हो कृष्ण.
जैसे मैं जब BHU में था तो मैं ट्राई कर रहा था अच्छा से 2-4 माला करने का, तो एक्सपीरियंस फ्रीडम फ्रॉम लस्ट टू सम एक्सटेंट, नॉट मच, बट मेरा जो बैड हैबिट था तो रुक गया। जो मैं 20 साल से ट्राई कर रहा था नहीं रुक रहा था, बट रुक गया, गंदे विचार आने कम हो गए, बंद हो गए। तो you have to experience by nice practice. That's why if you want to preach Krishna consciousness, if you have great desire to help humanity which is suffering, it's very important that we good sadhana. तो अच्छा साधना नहीं होगा, आपको खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या दूसरों को आप देंगे? When by your sadhana you experience something, you want to give it to, इसलिए कोई अच्छा जप ही नहीं करेगा और फिर वो जाके प्रचार करेगा तो क्या प्रचार करेगा? तो अच्छा जप करेगा तो उसको बाजार में खाने का इच्छा फिर नहीं करेगा, उसको उतना फील नहीं होगा कि बाजार में खाना है, समझ रहे? तो ऐसा नहीं कि बाजार में पुचका है, तो वो बाजार में पुचका खाएगा तो क्या प्रचार करेगा? समझ रहे? उसका प्रचार भी फूस हो जाएगा पुचका जैसे। तो बट हम लोग जैसे अच्छा प्रैक्टिस करें तो फिर वी विल डेफिनेटली गेट रियलाइजेशन। कोई अच्छे जप करेगा, इफ समबडी चैंट्स नाइसली, ही विल डेफिनेटली फील क्लेशाग्नि, फ्रीडम फ्रॉम मेटेरियल डिजायर। तो इसलिए अच्छा साधना करने से अच्छा प्रचार कर सकता है। अच्छा जो साधना करेगा वही अच्छा प्रचार। आप सोचोगे हम साधना नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, और फिर प्रचार कैसे होगा? संभव नहीं। तो आपको रियलाइजेशन नहीं रहेगा। अभी आपको खुद ही मान लीजिए मेटेरियल डिजायर है बहुत ज़्यादा, आप बाज़ार में कुछ भी देखते हैं, अरे चॉकलेट खाना है, हाँ, मान लो रास्ते से यहाँ जा रहा है, फिर केक खाएगा, क्या तो दुकान आता है बीच में, विद्युत बेकरी, चलो एक तो केक खा लेते हैं, समझ रहे, आगे पुचका, हाँ, तो ऐसे खाते रहेगा तो क्या प्रचार करे? लेकिन वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा, फील कहाँ आता है खाने का? इतना सारा सामान पड़ा था, मन ही नहीं करता, इजंट इट? कितने लोगों को ज़्यादा मन नहीं करता है बाजार में खाने का? नहीं करता है, क्या है, थर्ड क्लास चीज़ का है। तो बिकॉज ऑफ गुड साधना यू विल गेट फ्रीडम फ्रॉम व्हाट वी से। ऐसा नहीं कि पूरा हो जाएगा, मतलब मैं बताया हंड्रेड्स ऑफ फ्लेवर्स आर देयर, द सटल फ्लेवर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, स्पेशली द डिज़ायर टू हैव यूनियन विद अ गर्ल, वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो एक दिन में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि अब जब किए एक दिन फिर मन में आ गया बेकार है, थूको, समझ रहे? वो उसके लिए थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? वो भी फ्लेवर आएगा, वो भी आएगा। हमारे क्या नाम है, यमुनाचार्य, समझ रहे हैं, उन्होंने इतना साधना किया, भगवान का इतना एक्सपीरियंस हो गया, वो बोल रहे हैं कि मैं जब लड़की के बारे में देखता हूँ, मतलब वुमेन के बारे में सोचता हूँ तो मैं थूक आता है। अगर उस लेवल पे तो आपका प्रचार बहुत सॉलिड हो जाएगा, समझ रहे हैं? प्रभुपाद का वैसा लेवल। प्रभुपाद जी एक बार बाहर निकले गाड़ी से, मतलब तो 200 लोग प्रणाम किए, तो असिस्टेंट देख के सरप्राइज, प्रभुपाद सो तुमको पता है क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो क्या बोला? कुछ बोला नहीं। प्रभुपाद बोले बिकॉज इवन इफ देयर आर 200 नेकेड वुमेन सिटिंग हियर आई विल नॉट बी अफेक्ट। समझ रहे? तो हम लोग का तो लेवल नहीं है, समझ रहे? हम लोग तो सोचे के फॉल डाउन हो जाएगा, सिटिंग का तो बात ही छोड़ दो, समझ रहे? इवन इफ यू जस्ट थिंक अबाउट दैट थिंग विल फॉल डाउन, समझ रहे? कितने लोगों को लगता है 200 नेकेड वुमेन फिर भी आप डिस्टर्ब नहीं हो? कोई है ऐसा? समझ रहे? तो ऐसा अगर है तो बहुत अच्छा है, समझ रहे? लेकिन ट्राई मत करना कि ठीक है हम ट्राई करते हैं, पतन हो जाएगा, समझ रहे? तो बहुत बार दूर से लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब क्लोज आते तो जो भी है। तो ये प्रभुपाद जी 2.60 का परपोर्ट में लिखते हैं, यद अवधि मत चेत कृष्ण पदार अविंदयो। यमुनाचार्य श्लोक में लिख रहे, स्रोत रथ में श्लोक आते हैं कि कैसे
व्हेन यू 2.60 या 60, जाओ नीचे जाओ, परपुट के अंदर ही श्लोक है। हाँ, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे, नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुमासी, तद अवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणे, भवती मुग्ध विकार सुष्टु निष्ठिमं च। Since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of Lord Krishna, यद अवधि, जब से मेरा मन कृष्ण की सेवा में लगा है, नव नव रस धामनी, मेरे को नए नए रस का आस्वादन हो रहा है, एंड आई हैव बीन एंजॉयिंग एन एवर न्यू ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर। तब से, जब से मैं कृष्णा कॉन्शियस का आस्वादन होने लगा है, तद अवधि बत नारी संगमणि, वो बहुत बड़े राजा थे, बहुत नारियों संग किए थे, तो बोले अब मेरे को जब वो नारी संग के बारे में याद आता है, कैसे मैं स्त्रियों के पीछे घूमता था, उनके साथ संग करता था, तो मेरे को मुख से क्या आता है, थूक आता है कि छी। हम लोग भी इसका मतलब वो तो बहुत एडवांस वर्जन है, लेकिन छोटा वर्जन आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे, समझ रहे हैं। अब हम लोग जब कृष्ण प्रसाद खाने लगे, बटर हलवा भगवान को ऑफर किया हुआ, एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ खाने लगे, तो कभी कभी याद आता है जो बाजार में खाते थे 3rd क्लास पुचका, मतलब समझ रहे हैं, तो थूकने आता, छी उसको कौन क्यों खाता, समझ रहे हैं, क्या छिटिर पिटिर चीज़ खाते थे, मतलब समझ रहे हैं। अब हायर टेस्ट आएगा तो वो सब चीज़ को याद करके होता है कि नहीं, हाँ, कि अब वो सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है, थॉट आता तो बोलते अच्छी क्या करता था, समझ रहे हैं। तो वैसे आप अभी उसका एक्सपीरियंस हुआ है, वैसे ही कोई आदमी को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, भगवान जब हम लोग कृष्ण की सेवा का प्रचार करने लगते, इतना आनंद आने लगता है सेवा करने में, तब वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जो काम करते थे गधे की तरह, वो याद आता तो मन करता थूकना आता, अच्छी, समझ रहे, क्या गधे की तरह पैसे के पीछे पागल था, समझ रहे हैं। लेकिन सबसे सटल कौन सा है, सेक्स डिजायर, वो इतना एवरीथिंग इज सेक्स डिजायर, बट खास करके वुमेन के साथ एसोसिएशन का जो डिजायर है बहुत सटल है, उसके प्रति आपको अगर स्पीड आने लगा मतलब आप एडवांस डिवोटी हो गए। और उससे भी सटल है नेम फेम का इच्छा, समझ रहे हैं, क्यों हमारा गुणगान करता है तो हम लोग को तो लगता है वाह, समझ रहे, प्रभु और थोड़ा बोलिए, समझ रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का क्या लेवल था, वो बोलते थे कोई गुणगान करता था तो लगता था उनको कि वो स्टूल ऑफ अ बोर, समझ रहे हैं। पिग जो होता है उसका स्टूल, मतलब स्टूल खाता है, तो स्टूल खाने के बाद क्या निकलेगा, स्टूल टू द पावर स्टूल, मतलब स्टूल तो ऑलरेडी गंदा होता है, कोई स्टूले खाता है तो उसका स्टूल कैसा होगा, बहुत खतरनाक। और बोर मतलब वो 3rd क्लास स्टूल खाता है, वो सुअर में भी एकदम ग्रेडेशन होता है ना, सबसे 3rd क्लास स्टूल खाता, तो उसका स्टूल कैसा होगा समझ। तो बोलते हैं नेम फेम किसके समान है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, जगतेर प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। हम लोग को तो एकदम बटर हलवा लगता है कि एकदम वाह घी निकल रहा है एकदम। कितने लोगों को ग्लोरिफिकेशन वर्स देन लगता है हेल, किसी को लगता है, तो आप बहुत एडवांस हो, समझ रहे। ये दो चीज़ बहुत सेटल है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मतलब सेक्स, वुमेन एंड वेल्थ, प्रतिष्ठा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, धन न धनम न जन्म न सुंदरी। रोज प्रार्थना तो करते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरी। महाप्रभु ने बहुत केयरफुली लिखवाया, न धनम न जन्म। महाप्रभु सोचे कि अगर मैं लिख दूंगा न धनम जन्म सुंदरीम, तो लोग बोलेगा न धनम, बोले जन्म तो कर ही सकता है, समझ रहे। महाप्रभु बोले कोई स्कोप मत छोड़ो, नहीं तो कलयुग का लोग जो है बोलेगा स्त्री छोड़ना है,
ग्लोरिफिकेशन में क्या दिक्कत? तो दिस आर वेरी वेरी सटल, but by intense practice of Krishna consciousness we'll experience freedom from these things. So we should say no to material sense gratification, we should say yes to Krishna. इसलिए 2.58 says say no to Maya. 2.59 says say yes to Krishna. What is 2.59? 2.59 is विषया विनिवर्तन से निराहार से देही न रसवर्जम रसोपि से परम दृष्टवा, कि केवल ना बोलने से नहीं चलेगा. यू से यस टू कृष्णा, यू से विषया विनिवर्तन से निराहार से, निराहार बिना खाना नहीं दोगे इंद्रियों को, अच्छा देखोगे नहीं, अच्छा खाओगे नहीं, अच्छा सूंघोगे नहीं, जहाँ दिन नहीं चलेगा. समझ रहे हैं? क्योंकि टेस्ट है, आत्मा भगवान को खोज रहा है, उसको टेस्टी चीज चाहिए, वो सक्रिय निष्क्रिय नहीं. तो इफ यू डोंट गिव इट पॉजिटिव, लाइक कोई आदमी लड़की को नहीं देख रहा है, वो देखना ही पड़ेगा उसको. लड़की नहीं देख रहा है, मन करेगा ही करेगा उसको. तो ही हैज टू गिव पॉजिटिव अल्टरनेटिव. क्या? कृष्ण को देखना है. तो कृष्ण का जब रूप उसको मनोहर लगने लगेगा तो फिर वो अपने आप वो इच्छा परम दृष्टवा निवर्तत, इसको क्या बोलते हैं? एक हायर टेस्ट. जब कृष्णा कॉन्शियस में हायर टेस्ट आ जाएगा, भगवान का रूप सुंदर लगने लगेगा, तब फिर वो खराब रूप देखने का मन. इसलिए भक्तों के जीवन में बहुत स्ट्रांगली नो बोलना चाहिए माया को, और बहुत स्ट्रांगली यस बोलना चाहिए. ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पतन निश्चित है. 2.60 में बोलते हैं कितना भी प्रयास कर ले कोई, कितना भी बड़ा योगी हो जाए, यत तो अपी कौन थे. समझ रहे हैं? कितना भी कोई यतन कर ले, पुरस्स्य विपश्चित, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति होगा. इंद्रियानि प्रमाथीणी हरंती. एक लड़का वॉइस में पूरा ट्रेंड था, पुणे वॉइस में सब कुछ का ट्रेनिंग हो गया, सोचा था शादी नहीं करके पूरा डेडिकेट करेगा, ब्रह्मचारी बने. लेकिन वो अमेरिका गया जॉब करने, और तो उसके काउंसलर मेरे को बताए थे 2-4 दिन में कोई वाइट वुमेन के साथ जाकर सेक्स कर लिया. समझ रहे? तो नॉलेज नहीं हेल्प करेगा, बिकॉज वहाँ कोई एंगेजमेंट ही नहीं था उसका. समझ रहे? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से नो टू माया. और वो वॉइस का मतलब प्रीचर था, मतलब सब कुछ उसको आता था. लेकिन डोंट थिंक कि आपको क्लास आता है, ये आता है तो आप ना बोल पाओगे. इट्स नॉट सो ईजी. समझ रहे? इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम. इसलिए नेक्स्ट श्लोक में बोले 2.61 में, हर समय अपने इंद्रियों को कृष्ण से लगा के रखिए. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्पर. भगवान से सब इंद्रियों को युक्त कर लीजिए. हमेशा भगवान को देखिए. किसी को अगर लस्ट परेशान करता है, जैसे मेरे को बहुत परेशान करता था, तो मैं हमेशा कृष्ण का फोटो अपने डेस्क पे रखूँगा. समझ रहे? पढ़ाई भी कॉलेज भी जाऊँगा तो वहाँ पर रख दूँगा राधा कृष्ण का छोटा फोटो. चरण कमल देखते रहेंगे भगवान का. तो यू हैव टू, इन द इनिशियल स्टेज यू विल हैव नो टेस्ट फॉर कृष्णा. बिफोर अनर्थ निवृत्ति टेस्ट फॉर माया and no taste for Krishna. And after Anarth Nivritti they taste for Krishna and no taste for. बस. तो आपको क्या करना है? अनर्थ निवृत्ति से इधर, पहाड़ के इधर से इधर आ जाना. बस अनर्थ निवृत्ति का स्टेज क्रॉस कर जाइए, तो फिर आप अनिष्टित भजन क्रिया से, उससे पहले तक का भजन क्रिया को बोलते हैं अनिष्टित भजन. क्या बोलते हैं? उससे पहले तक की भक्ति को क्या बोलते हैं? अनिष्टित. क्या बोलते हैं उसको? अनिष्ट. क्योंकि अभी माया में आपका मन लगता है और कृष्ण में मन, इसे चैंटिंग करते करते नींद आ जाएगा. समझ रहे हैं? बैठे बैठे पता चलेगा रूम में पहुंच गए, गेटे दिखता है बार बार, खिड़की दिखता है. समझ रहे? जब करो वो नहीं दिखता है, मतलब समझ रहे? मन कृष्ण में लगता ही नहीं, मतलब
सोचता है जस्ट 6:40 कब हो, भागे यहाँ से, मतलब समझ रहे हैं, खोजते रहता, मतलब जल्दी से भागे, जबकि चाव से आया था 4:30 बजे, आज ऐसा जब करना शुद्ध हो जाना समझ रहे हैं। तो क्योंकि अभी मन में कृष्णा नहीं है, मन इंद्र कृष्णा कॉन्शियस वी डोंट लाइक, माया भी लाइक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनर्थ निवृत्ति पार करेंगे तो फिर कृष्णा कॉन्शियस लाइक करने लगेंगे और माया हेट करने लगे। तो व्हाट इज सिंपल सॉल्यूशन, अनर्थ निवृत्ति पार कर जाइए। ओनली अनर्थ निवृत्ति जो एक पहाड़ के समान, उसका हाइट है इन्फिनिटी ऑलमोस्ट, समझ रहे, हाइट कितना है, टेंडिंग टू, बट इफ यू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा विल मेक इट वेरी स्मॉल। इसलिए वी हैव टू टेक डीप शेल्टर ऑफ कृष्णा कॉन्स, एंड देन व्हेन कृष्णा इज प्लीज्ड विथ अस, एंड दैट हाइट ओनली कृष्णा कैन रिड्यूस। इसलिए कोई बोलेगा मैं अपने बल से कृष्णा को मैं टेस्ट ले आऊंगा, पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बिकम हम्बल, तिनादपि, कि कृष्णा मेरे से नहीं होगा। वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट एंड देन अंडरस्टैंड कृष्णा आई कैन नॉट, एंड वी क्राई बिफोर कृष्णा, माय डियर लॉर्ड, एंड देन कृष्णा सीइंग द ह्यूमिलिटी, देन he reduces this, it shatters that mountain and we can easily cross. So the freedom from anartha is a gift given by Krishna to a sincere sadhaka. It's not that we can make it. When we try our best, then Krishna will remove that. So that's why as a devotee it's our duty to chant very nicely, to practice Krishna consciousness very sincere. And when you do that, then you experience higher taste. समझ रहे हैं? And then preaching becomes natural. तो उसको higher taste experience हो तो दूसरों को देना, तो जानता है दूसरों को, वो अपने जीवन से गुजरा है, कितना बेचारा कितना गुजरा है, वो पता है कि कितना दूसरे लोग गुजर रहे हैं. So that's why it's our. No, you may have experience at different level. किसी का बाहर खाने का हैबिट छूट गया, किसी का हो सकता है लड़की को सेक्स करने का इच्छा ही खत्म हो गया, वो तो बहुत अच्छे ऊंचा लेवल है. लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ तो छूटा है, मेटेरियल डिजायर. अच्छा से प्रैक्टिस, और जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना छूटेगा, उतना आसानी से आप प्रीच कर सकते. समझ रहे हैं? जितना आपका मेटेरियल डिजायर से आप फ्री हैं, मतलब सटल जैसे सेक्स हो गया, वैसे ही फैमिली अटैचमेंट्स, डूअरशिप मेंटेलिटी कि मैं करूँगा तभी कुछ होगा, ये सब बहुत सटल अनर्थ है कि मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा. लेकिन आप अच्छा साधन करेंगे तो पता चले मेरे से कुछ नहीं होता है, भगवान ही करता. देन इट्स अ बिग रिलीफ. इतने साल तक मैं सोच रहा था कि मेरे को करना है. कितना बड़ा रिलीफ हो जाएगा. सबके मन में टेंशन है, मेरा मम्मी का क्या होगा, पापा का होगा, बच्चा का होगा, बेटा का होगा, बेटी का होगा, ये होगा वो टेंशन मूर्ख के समान है. शास्त्र बोलता कुछ नहीं कर सकते आप. उसी के समान से गधा है. गधा पे एक आदमी जा रहा है 100 किलो सामान ले, समझ रहे हैं, और कोई आदमी बोल दे अरे गधा का शोषण कर रहा है, तो वो क्या किया, गधा का 100 किलो लोड लेके अपने सर पे रख लिया. समझ रहे हैं? तो गधा को रिलीफ किया कि नहीं. वो जैसे मान लीजिए हम सुपो टोटो से सामान ला रहे हैं बहुत सारा, 2 बोरा आलू लेके आ रहे, कोई बोले टोटो पे इतना टॉर्चर कर रहा है, तो टोटो पे बैठे वो और सर पे रख लिए, कि टोटो का सीट पे नहीं रखेंगे. तो टोटो का रिलीफ किया कि नहीं वो. हाँ, तो वैसे ही कलयुग के लोग, मतलब ये सब बर्डन है झूठ मूठ का. ऐसे में हम कुछ नहीं करें, बट झूठ मूठ का बर्डन है कि हमको करना है, कुछ नहीं होता. तो बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियस, यू आर रिलीव्ड फ्रॉम सेक्स डिजायर, यू आर रिलीव्ड फ्रॉम डूअरशिप मेंटालिटी, एंड द सोल बिकम्स सो नरिश्ड, ही फील्स सो रिलीव्ड. उसको बहुत राहत मिलता है, एंड ही वांट टू गिव दिस राहत टू अदर्स. तुम काहे के लिए, जैसे कोई गधा के ऊपर बैठ के 100 किलो का लोड लेके जाएगा, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो बोले अरे उसको नीचे रख दे रहे भाई, काहे के लिए. नहीं, गधे को कष्ट नहीं दूंगा. अरे पागल, तुम्हारा सोचने से गधा.
समझ रहे? हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो गुरु चाहिए ना, समझ रहे हैं? कोई आदमी जाके इलिसिट सेक्स कर देगा किसी लड़की के साथ और फिर बोलेगा मैं डूअर नहीं हूँ, समझ रहे हैं? इसीलिए कोई आदमी मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आएगा, बोले मैं डूअर नहीं हूँ। तो इसीलिए आदर्श में कोई इंचार्ज रखा गया, समझ रहे? उसको सिखा देगा तुम डूअर नहीं है मॉर्निंग प्रोग्राम में, तो मंत्र लिखने का भी डूअर नहीं कर। जब इफ़ यू आर सच अ ग्रेट डिटैच पर्सन कि तुम लेट आ रहे हो या जैसे भी आ रहे हो, तुमको फीलिंग है कि तुम डूअर हो नहीं, तो फिर लिखो, मंत्र लिखो, उसमें तो तुम डूअर नहीं हो, चुपचाप करो ना। उसमें बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी छोड़ दीजिए, इसमें क्यों छोड़ दे फिर, समझ रहे हैं? तो दैट्स वाई मैनी टाइम पीपल विल जस्टिफाई देयर डूअरशिप मेंटल। जब हम लोग डूअर नहीं है तो ठीक है, खाना मत, सामान मत ला, कुकिंग मत करो। कोई बोले कुकिंग करने क्या जरूरत है, हम डूअर नहीं थे, समझ रहे हैं? लेकिन 1 बजे उसको प्रसाद चाहिएगा नालायक को, समझ रहे हैं? तो 1 बजे प्रसाद चाहिए, उसको बोलेंगे ठीक है काम मत करो, तो काम नहीं करे, लेकिन वो अपना खाने का रेडी करेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, हाँ जब उनको बोलते हैं कि यात्रा में आ जाएगा, बोले भगवान चाहेंगे तो, बोलते ठीक है भगवान चाहेंगे तो खाना ही मिल जाएगा, कुकिंग मत कीजिए, नहीं नहीं वो तो करना पड़ेगा। तो कुछ जगह पे एकदम हाई फाई फेथ पोस्ट कर रहे हैं कि भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, तो भगवान चाहेंगे तो खाना भी आ जाएगा, तो फिर खाना क्यों बना रहा है? तो उसको जो अच्छा लगता है उसमें वो करता है, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं। सिंपल सा पॉइंट है, और वो एडवांस नहीं कि वो बिना भगवान पे फेथ रखे, समझा? अभी तो समझाया फिर कुछ। हाँ ना, तो वही तो बता रहे, जब चोरी किया तो बोलता मैं डूअर नहीं हूँ, मैं वो कृष्णा ने करवाया, ठीक है? तो जज भी बोलेगा कि तुमको फांसी का सजा दे रहे, डूअर नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं सर माफ़ कर दीजिए। उस समय नहीं बोलेगा कि ठीक है मैं तो डूअर नहीं हूँ, तो फांसी में चढ़ा दीजिए। अगर उतना लेवल है तो फिर सचमुच वो डूअर नहीं, उतना लेवल फांसी चढ़ाएगा तो सोचे कि कोई बात नहीं, समझ रहे? उस समय उसका नानी याद आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो यू कैन नॉट आर्टिफिशियली कम टू अ लेवल बियॉन्ड बॉडी, समझ रहे हैं? सो दैट्स वाई वी नीड गुरु परंपरा। सो लेट मी जस्ट कंप्लीट। तो मैं पॉइंट क्या बताना चाह रहा था कि इफ वी डू वेरी नाइस साधना वी विल एक्सपीरियंस कृष्णा एट आवर लेवल। There are different levels of experience of Krishna. It's not that कृष्णा को डायरेक्ट देखना, उनका बांसुरी सुना है एक्सपीरियंस। फ्रीडम फ्रॉम मेटल डिजायर इज ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑफ कृष्ण। उसको बोलते हैं पर इस अनुभव। इसको क्या बोलते हैं? अलग अलग लोग का अलग पर इस अनुभव होगा, पर इस अनुभव। सो हम लोग का कुछ अनुभव है, उसके अनुसार हमको प्रीचिंग करने में हेल्प करेगा, समझ रहे? जैसे कोई आप लड़के को गाइड कर रहे हैं, उसका लस्ट का प्रॉब्लम है एंड आपने बहुत अच्छा साधना करके ओवरकम किया अपना प्रॉब्लम, देन यू कैन वेरी इजीली प्रीच टू हिम, अरे टेंशन मत लो हट जाए। लेकिन आप खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ रहे हैं? आपको खुद ही डाउट है कि शायद लस्ट लग रहा कभी नहीं जाएगा, तो उसको क्या प्रीच करेंगे? सो दैट्स वाई वी कैन प्रीच टू अ पर्सन टू द एक्सटेंट वी हैव प्यूरिफाइड हाउस। आप अपने ऊपर नहीं ले जा सकते इस बच्चे को, पॉसिबल नहीं, हमको उस चीज़ का आइडिया ही नहीं। तो इसलिए अच्छा साधना प्रचार के लिए बहुत, तो इसलिए प्रचार में आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों को विजडम देना है। क्या देना है? नॉलेज देना है। एंड नॉलेज देने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसा नहीं कि अप्लाई कर लेगा तुरंत, समझ रहे हैं? आप किसी को समझा दिए कि लस्ट खराब है, तो ऐसा नहीं कि लस्ट छोड़ देगा, तो उसके बगल में खड़ा रहना पड़ेगा। कहाँ रहना पड़ेगा? After we have enlightened a person, we have to stand near him and empathize. So preaching has two aspects, not only giving class, enlighten and
एम्पथाइज, समझ रहे हैं? इनलाइटन करना, उसके बाद एम्पथाइज करना, बिकॉज कर नहीं पाएगा तुरंत वो अप्लाई। किसी को लस्टी डिजायर हो, समझ गया बेकार है, लेकिन छोड़ नहीं पाएगा तुरंत, तो उसके बगल में खड़ा रहना पड़ता है उसको हेल्प करने के लिए कि ठीक है चला जाएगा, ठीक है करो, धीरे धीरे जाएगा। और एम्पथाइज करते समय डेंजर है कि उसकी वासना हमको अफेक्ट कर सकती, समझ रहे? अरे पो जी वो लड़की के बिना रहने बहुत अनईजी लग रहा, उससे सुन सुन के कहीं आप भी वीक हो सकते। दैट्स वाई प्रीचिंग इज लाइक टेकिंग पॉइजन ऑफ अदर। क्या तो आप इनलाइटन करके छोड़ दो, लेकिन इनलाइटन करके छोड़ने से वो उठ नहीं पाएगा, वो फिर उसका नॉलेज रहेगा लेकिन उठ नहीं पाएगा, तो उसको हेल्प करना पड़ता है। तो इसलिए आपका साधना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको नीचे नहीं गिरा दे। आपका बहुत स्ट्रांग साधना है तो आप उससे मिलेंगे, आपका पोटेंशियल हाई है, लेकिन आपको उससे सुनेंगे, लेकिन जैसे अजामिल का पोटेंशियल लो था, जैसे वो वैसे आपको देखा वो हरी बोलो, लेकिन तो इसीलिए प्रीचिंग मीन्स बहुत स्ट्रांग साधना करना पड़ेगा। स्ट्रांग साधना करेंगे तो आपका पोटेंशियल हाई रहेगा। फिर उस बच्चे से मिलेंगे, आप उसको इनलाइटन करेंगे, समझाएंगे, फिर वो अपना प्रॉब्लम, उसका मन में अभी भी लग रहा है सेंस हैप्पीनेस देगा, वो बोलेगा पो जी 50 लाख का जॉब हो जाएगा तो बहुत हैप्पीनेस हो जाएगा, और आप भी सुन के बोलेंगे अरे ठीक है बोल रहा है, हम भी ट्राई करते हैं अब हम 12 लाख खराबे हो, मतलब 12 लाख बोले पो जी 50 लाख कर यही कर देंगे, वो कर देंगे, समझ रहे? और आप 10 लाख में तो आप उसको गाइड करें, तो आपको मन में ऐसा ना आ जाए कि बेटा हमको ही 50 लाख, और कभी कभी उसको बोलना पड़ेगा हाँ 50 लाख करो, और उसको बोलते बोलते आपके मन में भी आ गया तो आपके गए। जैसे मान लो ब्रह्मचारी है, हमसे कोई बोला जी बहुत लस्ट आ रहा है, शादी कर लो, और वो शादी कर ले सेटिस्फाई हो जाएगा ये वो, हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा रहेगा ये वो, उसको गाइड करते करते अरे शादी कर लिया बहुत इंजॉय कर रहा है, चलो हम भी शादी कर ले तो हरी बोल हो जाएगा, समझ रहे? तो पॉइंट इज, इसलिए प्रीचिंग करना बहुत डेंजरस, इतना ईजी नहीं। अगर अच्छा प्रीचिंग करना है, हेल्प करना है, तो इसीलिए एनलाइटन के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? एम्पथाइज। एम्पथाइज में उसका जहर लेना पड़ेगा। बट अगर आपका साधना स्ट्रांग है, शिव जी भगवान का स्मरण करे, तो पूरा जहर कुछ भी इफेक्ट। तो डिवोटी शुड हैव वेरी स्ट्रांग साधना, ताकि उसका हाई लेवल हो तो दूसरों को इजीली फेथ दे सके, इजीली कन्विंस कर सके, इजीली मतलब फेथ दे सके, अरे सबसे बेकार है टेंशन मत लो, और उसको धीरे धीरे प्रोसेस से निकाल भी सके। बट थोड़ा थोड़ा उसका छीटा विष का आपको पड़ेगा, समझ रहे? बिकॉज वो मेटल लेवल पे, तो आप उसको टान रहे हो ऊपर, लेकिन उसका अननोइंगली आप भी नीचे जा रहे। तो अगर आप अपने आप को बढ़िया से ऊपर ले जा रहे साधना कर करके, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन साधना उतना स्ट्रांग नहीं है और आप सिर्फ प्रीचिंग कर रहे हैं, तो फिर आप नीचे आने का भी संभव। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू वेरी नाइस साधना एंड वी डू वेरी नाइस प्रीचिंग। एंड दैट्स वाई जो प्रीचिंग करता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। जो इतना ईजी नहीं है प्रीचिंग करना, इतना ईजी बहुत झमेला। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे को इतना कोई प्रिय नहीं है जितना जो प्रचार कर समझ रहे हैं? बिकॉज रिक्स है, लेकिन ये रिक्स को अच्छे से लेता है और अच्छे साधना करेगा, अच्छा प्रचार करेगा, तो भगवान दिस पर्सन मेक्स मैक्सिमम एडवांस। जो आदमी अच्छा से प्रैक्टिस करेगा साधना और फिर प्रचार करेगा, उसको सबसे ज़्यादा मर्सी भगवान। कोई केवल साधना करेगा प्रचार नहीं करेगा तो उसको भगवान मर्सी नहीं देते। केवल अपना शुद्धिकरण करा, दूसरा लोग सफ़र कर उसको हेल्प नहीं कर, तो उसका ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता। तो इसलिए अच्छा साधना भी करना पड़ेगा, अपना भी ग्रोथ करना पड़ेगा, साथ साथ प्रचार भी। तो दिस डेज लाइक एकादशी आर वेरी गुड so that we can take deep shelter of Krishna, so that we can experience Krishna. ठीक है? हरे कृष्ण। यस, क्या क्वेश्चन था? जोर से बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। इनका क्वेश्चन है कि वो यहाँ पर तो बहुत आसान है भक्ति करना, लेकिन यूएसए जाएंगे तो वहाँ तो बड़ा हरी बोल है, इसलिए मत जाना।
जाना भी है। इसीलिए ऐसे लोग का संग मत करना, समझ रहे? तो कितना स्ट्रांग इच्छा है, समझ रहे? कि देखो प्रचार में ऐसा ही होगा, समझ रहे? आप कन्विंस है कि यूएसए जाएंगे हरी बोल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे मत जाओ, वो बोलेगा नहीं जाना तो ही है, वहाँ जाके एंजॉय भी करना। तो इसीलिए आपका साधना स्ट्रांग होना चाहिए, उसको भेजे और आप यहीं पर रह के हैप्पी रहे। ऐसा नहीं कि उसको भेजते भेजते आपके मन में अरे मेरा भी एक टिकट बुक कर यार, समझ रहे? तो इसीलिए अपना अच्छा साधना करना चाहिए, स्ट्रांग साधना करना चाहिए, और वहाँ पर भी जाएं तो भक्तों के संग में रहना चाहिए और गाइडेंस में जाना चाहिए। अब भक्तों के संग में रहेंगे प्रोटेक्टेड वे में तो उतना दिक्कत, जैसे अभी भक्त लोग हैं वर्चुअल संग हो गया है, अमेरिका भी जाएं तो आप जूम पे जपा कर सकते हैं, तो फिर उतना दिक्कत नहीं होगी। तो केयरफुल रहना पड़ेगा और कंसल्ट करना पड़ेगा, अगर आपका लेवल नहीं है तो मत ही जाइए, तो ध्यान देखना, ठीक है? हरे कृष्ण। मोहिनी एकादशी की, शिल प्रभुपाद की।